وہ کہتا تھا جیسے اب وہ اشفاق تمہارا ہسبینڈ ہے ویسے وہ میں بھی تمہارا ہسبینڈ ہوں. جی. استغفر اللہ من ذالک. نہ میرے بچے ہیں نہ میرا ماں باپ ہے، کوئی بھی نہیں ہے میرے سر پہ. اس نے وہاں سے مجھے ڈیورس بھیج دی، میں شادی کر رہا ہوں، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا. ابھی میرا کوئی مستقبل نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی میں کدھر جاؤں، کہاں کیا کروں. میں کچھ نہیں کر سکتی، اللہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے. بھائی 2 سال ہو گئے میری شادی کو. بچہ ہوا ہے؟ نہیں بچہ وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بلاتے ہیں 2-3 مہینے اپنے پاس رکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد بھائی وہ چھوڑ دیتے ہیں. کوئی وہ ولیمہ نہیں کرتے شادی پہ، کوئی وہ زیادہ خرچہ نہیں کرتے، بس ایک نارمل کرتے ہیں. ہم جیسے غریبوں کو وہ پھنساتے ہیں، پھنسا کے دونوں بھائی وہ ان کی حصوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کھیل کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی میرا جتنا اعتماد اٹھ گیا نا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، جو میرے ساتھ گزرا، مجھے اعتماد نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہو تو اللہ کے بعد آپ ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی اگر نیک انسان ہو جو میرے گھر والوں کو، مجھے، میرے دردوں کو سمجھے تو میں اس کو کوئی نہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. السلام علیکم ناظرین، ماجد علی حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے مجھے آپ بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف بخشا ہے. ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر معاشرے کی تلخ حقیقت اور یہ حقائق پر مبنی داستان آپ بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. آج میں موجود ہوں واہگہ بارڈر کی حدود میں. میرے ساتھ ایک بہن صاحبہ موجود ہیں. ان کے درندہ صفت ایک شفاق مرد نے شادی کے نام پہ ان کے ساتھ فراڈ کیا اور ان کو ڈیورس دے دی. تو کیا وجوہات بنی، آئیے ناظرین الف سے یہ تک آپ کو مکمل کہانی بتائیں گے. اور جو ہماری بہنیں ہمیں دیکھتی ہیں، پلیز خدا را ایسی ہماری ویڈیوز کو دیکھ کے آپ لوگ سیکھا کریں. جو آج کل جو لوگ کر رہے ہیں، آپ بچیں ان سے، اپنے آپ کو محفوظ کریں. مزید آئے اس بہن سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا میری بہن تھوڑا سا آگے آ جائیں اور سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فاطمہ ہے بھائی. مکمل نام؟ جی رخسار فاطمہ نام ہے میرا. اچھا تو کیا ہوا تھا، شادی کیسے ہوئی تھی، کون ہے وہ درندہ؟ کتنی عورتوں کے گھر برباد کر چکا ہے، کتنی عورتوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہے، کتنی عورتوں کے جذبات کے ساتھ کھیل چکا ہے. آج اس درندے کے خلاف کھل کر بتائیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. السلام علیکم بھائی. وہ ادھر ہی رہتے تھے، لاہور میں رہتے تھے، تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ ایسے لوگ ہیں. وہ سیالکوٹ سے آئے تھے، شکر گڑھ سے، تھوڑا آ گیا تو ادھر ہمارے گھر کے پاس ہی رہتے تھے. تقریباً 1 سال تک میری امی سے رشتہ مانگتے رہے. میری امی نہیں مانتی تھی، امی کہتی تھی میں نے نہیں کرنا. پھر انہوں نے یعنی کہ ترلا منت کیا، فیملی ان کی گئی، رشتہ کیا انہوں نے. تو جب رشتہ ہو گیا، میرے ساتھ بالکل ٹھیک جا رہے تھے. تو جب انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ، تو میں ان کے بھائی کے گھر رہنے کے لیے گئی. ان کے بھائی نے میرے ساتھ یعنی کہ مجھے کہا کہ میرے بھائی کی اور میری بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر میرے بھائی کی بیوی ہے تو وہ میری بھی بیوی ہے. مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا تو میں اپنے بھائی کے گھر آ گئی. جب میں بھائی کے گھر آئی ہوں تو مجھے کافی سال ہو گئے، میں ادھر ہی اپنے بھائی کے گھر ہی ہوں. مجھے کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں کیا انہوں نے. اچھا آپ کا جیٹھ کیا ڈیمانڈ کرتا تھا آپ سے؟ وہ کہتا تھا جیسے اب وہ اشفاق تمہارا ہسبینڈ ہے ویسے وہ میں بھی تمہارا ہسبینڈ ہوں. جی. استغفر اللہ من ذالک. تو پھر کیا ہوا؟ یعنی کہ اس طرح انہوں نے 4 عورتوں کے ساتھ جو ہے نا اس طرح ہی کیا ہے. اور میرے پاس ابھی بھی جو ہے ان کے ڈیورس پڑے ہوئے ہیں، ان کی بیویوں کے 4 کے. تو میرا بھی ہے جو مجھے انہوں نے وہاں سے بھیجا. تو جب میں نے ان کی بات نہیں مانی، میرے شوہر نے بھی کہا کہ میرا بھائی کی بات، میرا بھائی میرے باپ جیسا، جو اگر میرے بھائی کی بات نہیں مانے گا میں اس کو نہیں رکھ سکتا. تو میں نے ابھی آ کے ان کو بولا کہ بھئی مجھے یا تو اپنے پاس بلائیں یا مجھے گھر لے کے دیں. میں یعنی کب تک اپنے بھائی کے گھر میں پڑی رہوں گی؟ مجھے اتنے سال ہو گئے میں اپنے بھائی کے گھر پہ ہی ہوں. مہربانی ہے، میرے بھائی نے اور بھابھی نے میرا بہت ساتھ دیا، یہ ایک حقیقت ہے.
अगर ये ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। हाय हाय। मेरे भाई ने और मेरी भाभी ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है, उसकी वजह से मैं अभी भी इधर ही हूँ। अभी मैंने उनके साथ डिमांड की कि मुझे अपने पास बुलाए या मुझे कोई घर दे, मेरे कोई मुस्तकबिल नहीं है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा माँ बाप है, कोई भी नहीं है मेरे सर पे। उसने वहां से मुझे डिवोर्स भेज दिया, मैं शादी कर रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। अभी मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, मैं किधर जाऊँ, कहाँ क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, अल्लाह के अलावा मेरा कोई नहीं है भाई। मैं अपना इंसाफ भी चाहती हूँ और मैं भाइयों से ये कहती हूँ बस मेरी बहन भाई मेरी मदद करे और मैं यानी कि कुछ न कुछ अपनी लाइफ में अपनी गुजारे जोगा हो जाऊँ। ना मेरे पास घर है, ना मेरा कोई कमाने वाला है, ना मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं मेरा साथ दे ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करूं ऐसा अपनी लाइफ में कि मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं। मेरी बहन, कितना अरसा पहले आपकी शादी हुई थी? भाई 2 साल हो गए मेरी शादी को। बच्चा हुआ है? नहीं, बच्चा वो उनका एक तरीका कार है कि वो बुलाते हैं, 2-3 महीने अपने पास रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भाई वो छोड़ देते हैं। कोई वो वलीमा नहीं करते शादी पे, कोई वो ज्यादा खर्चा नहीं करते, बस एक नॉर्मल करते हैं। हम जैसे गरीबों को वो फंसाते हैं, फंसा के दोनों भाई वो उनसे उनकी किस्तों के साथ खेलते हैं, खेल के उनको छोड़ देते हैं। हाय हाय, न जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। नज़रीन, बड़ी दुखी दास्तान है। उसको कभी ख्याल नहीं आया अपनी आपकी जगह पे उसकी बहनें भी होंगी, माँ भी होगी, ख्याल नहीं आया उनको कोई ख्याल नहीं आता। वो दोनों भाई बस वो इधर करते हैं, जाके दुबई में बैठ जाते हैं, बाद में कहते हैं कर ले, हमारा क्या करना है, कमाना और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप लोग। वो कुछ भी नहीं करते, बस उनका कुछ भी कोई बिगाड़ सकता। यहाँ का कानून है, यहाँ का कोई कुछ नहीं है। वकील के पास जाओ, वो यही कहते हैं कि यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते उनका। मेरी बहन, अब डिवोर्स हो गई आपको? हाँ जी, 2 माह हो गए, उन्होंने डिवोर्स भेज दी। जब मैंने अभी आके ज्यादा सख्ती की फिर नहीं मुझे अपने पास बुलाया या मुझे घर दे, मुझे मेरी ये क्या लाइफ है, मैं अपना घर वाली लाइफ जीना चाहती हूँ, मैं एक सुकून वाली लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं कब तक कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगी। आपके कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहनें हैं और हमारे 4 भाई हैं। 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है वो है और एक ये जिसके घर में रहती हूँ, ये मेरा भाई है। अब मेरे यही 2 भाई है बस, बाकी 2 भाइयों से हम नहीं मिलते। क्यों? बस वैसे ही उनके साथ हमारी फैमिली बस लेन देन की वजह से झगड़ा हुआ, नहीं मिलते। जाहिर मैंने कुछ पैसे देने थे उनके, मैंने अपने हस्बैंड को दिए थे, वो मुझसे मांगते। मैंने मेरा जेठ का बेटा मुझसे पैसे लेके गया, मेरा भाई मेरे साथ लड़ा है। उनके वो मजदूर है, इतने मुश्किलों से कमाते हैं, उन्होंने वो पैसे नहीं दिए। मेरी बहन, अब ज़हन में ख्याल नहीं आया कि आप आगे किसी और का घर बसाएं, निकाह कर लें? कोई ऐसे ख्यालात हैं? भाई ऐसे ख्याल मैं कैसे कर सकती, इतना बड़ा मेरे पास आज धोखा हुआ कि मैं एक जान से ज्यादा उसको चाहती थी, मैं अपनी दुनिया समझती थी उसको। वो इतने वादे करके इतना कुछ करके मुझे कोई भरोसा नहीं है, मुझे किसी पे कोई इत्मीनान नहीं है कि मेरे लिए क्या कोई करेगा। मेरा इत्मीनान टूट गया। मेरी बहन, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। मेरे घर में भी बहनें हैं, मैं भी खुद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी 2 बहनों का भाई हूँ। आपके जज्बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी बहन, अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरे साथ बहुत से मेरे ओवरसीज और पाकिस्तान में बहुत मेरे फैंस हैं जो निकाह करना चाहते हैं। अगर मैं सारी अपनी जिम्मेदारी दूं तो फिर क्या ख्याल है आपका? भाई ये बात नहीं है, मैं हर मर्द को गलत नहीं कहती, क्योंकि मर्द में भाई भी है, बेटे भी है और बाप भी है, सब है। लेकिन कुछ मर्दों ने जो एक इत्मीनान हमारा खराब किया है, जो जिस तरह किया है, ऐसे मैं कैसे इतनी जल्दी किसी पे नहीं कर सकती। मेरे अंदर दोबारा हिम्मत नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो। तो मेरा कोई नहीं है भाई, अल्लाह के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं बार बार अपने भाई के दरवाजे पे नहीं आ सकती। ये घर आपके भाई का अपना है या रेंट का है? ये रेंट पे लिया हुआ हमने। भाई क्या काम करता है? भाई मिस्त्री मजदूर है, बस मजदूरी करते हैं। अब आपको किन चीजों की जरूरत है? सर्दियां आ गई हैं, बड़ी परेशानी भी बनी हुई है। आप बता रही थी कॉल पे, ना गर्म कपड़े हैं, ना कंबल है,
کیا معاملات ہیں؟ कुछ भी नहीं है भाई। एक तो पाकिस्तान में आपको पता जो मुल्क के हालात हैं, मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हुए हैं पाकिस्तान में। उसके बाद जो ना हम बिल दे सकते हैं, रेंट में हुआ घर है ना हम लोग किराया टाइम से दे सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते भाई। हमें बस ये है कि हमें छत भी चाहिए, हमें जरूरियात के लिए चीजें भी चाहिए। अभी हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद करें आप। मेरी बहन आपकी उम्र कितनी है? मेरी 33 है भाई। मेरी बहन मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप ये मुझे जिम्मेदारी सौंपेंगी तो इंशाल्लाह ताला मैं आपका भाई बनकर आपकी इंशाल्लाह ताला रुखसती करूँगा, आपके हाथ पीले करूँगा और आप सारी जिंदगी मुझे दुआएं देंगी इंशाल्लाह ताला। भाई मेरा जितना एतमाद उठ गया ना, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ वो गुजरा है, मुझे एतमाद नहीं है। लेकिन आप कहते हो तो अल्लाह के बाद आप है भाई, कोई मसला नहीं है। कोई अगर नेक इंसान हो जो मेरे घर वालों को, मुझे, मेरे दर्दों को समझे तो मैं उसको कोई नहीं अपनाने के लिए तैयार हूं। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम फरमाए मेरी बहन। आप लोग अल्लाह की रज़ा के लिए इस बहन की मदद भी करें। और जो लोग वाकई निकाह करना चाहते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर भी शो हो रहा होगा, तो आप लोग मेरे साथ रब्ता करें। अगर मैं आपकी तस्दीक करूंगा, अगर आप मुझे अच्छे बंदे लगे तो मैं आपसे भी वादा करता हूँ इंशाल्लाह ताला मैंने शादियाँ करानी है, निकाह करानी, इसका बड़ा अजर है। किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी अच्छी हो जाए, किसी मर्द का घर खुशहाल हो जाए, उनके जो बच्चे पैदा होंगे मुसलमान, मुझे तो बड़ी दुआएं मिलेंगी। ये तो बड़ा नेक अमल है। अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम फरमाए। बाकी मेरी बहन मैं आपके गम में, दुख में, दर्द में आपका बराबर का शरीक हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है। यकीन करें कि ऐसी हज़ारों लाखों बहनें बेटियां हमारे माशरे में जो हिम्मत नहीं करती कैमरे पे आने के लिए, जालिम के खिलाफ बोलने के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ आपने बहुत बड़ा जहाद किया है, आपने हकीकत बताकर। ऐसी बहनों को भी पैगाम दें जो तस्दीक नहीं करती, बगैर किसी तस्दीक के ऐसे ट्रस्ट कर लेती हैं नौजवानों पे, उनको क्या पैगाम देंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी कोई कुछ चीज नहीं है ऐसी। ये सब आजकल के दौर में बस सोच समझ के करे, जो भी फैसला है अपने बड़ों पे छोड़े। सबसे बड़ी बात है कि बड़े जो वालिदैन करते हैं वो सबसे बेहतर फैसला। और मेरी भी वालिदा ने ही किया था, लेकिन मेरे नसीब ऐसे निकले। लेकिन मैं कहूंगी सोच समझ के देख के करें। आजकल भरोसे का काबिल दुनिया नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जो हमें घर बैठों को नहीं बिल्कुल भी पता, और हमारे जैसे लोग शिकार हो जाते हैं उन चीजों का। हाय हाय हाय। मेरी अब्बू को 12 साल हो गए फोत हुए, 2 साल मेरी अम्मी को हो गए। मेरा माँ बाप बहुत शरीफ था, बहुत अच्छे थे वो। मेरी बहन अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम फरमाए।